Advanced Partnership Accounts, Part 4, Unit 4, BCom Part 1, Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, Group 1, Paper 1 of Financial Accounting. The entire syllabus is on your screen, and the chapter with which we are going on is shown in red color. The entire syllabus is shown on your screen every time so that you can recognize what has been done and what is being done and what is pending. Now all the remaining problems relating to partnership are going to be discussed regarding the chapter admission of partner in this lecture. In the next lecture, we will start with a new problem, that is retirement and death of a partner. नए साझेदार के प्रवेश पर आने वाली लेखांकन समस्याओं के इस अंतिम भाग में आपका पुनः स्वागत। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे एक नई समस्या जो साझेदारी से संबंधित होती है, जिसमें किसी साझेदार की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर कौन कौन सी लेखांकन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम बात करेंगे। The next accounting problem is adjustment regarding accumulated profits or losses or reserves and surplus. It is needless to state that if there is any accumulated profit or losses or other surpluses, the same should be transferred to old partners' capital or current accounts as per the old profit sharing ratio before the admission of new partner. The journal entries to be passed are for transferring accumulated profits, profit and loss account credit balance debit, general reserve account debit, any other surplus account debit to old partners capital account as per old profit sharing ratio. For transferring accumulated losses, old partners capital account debit as per old profit sharing ratio to accumulated losses account. संचय तथा अवितरित लाभ या हानि का विभाजन। नए साझेदार के प्रवेश के समय संचय की राशि तथा अवितरित लाभ या हानि का शेष पुराने साझियों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन में बांट दिया जाता है, क्योंकि वे संचय एवं अवितरित लाभ उन लाभों में से होते हैं जो नए साझी के प्रवेश से पूर्व के लाभों में वर्षों में कमाए गए होते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व ही इनका विभाजन पुराने साझेदारों के मध्य कर दिया जाए, क्योंकि इन लाभों अथवा हानियों पर केवल वितरण का अधिकार पुराने साझेदारों के पास ही होता है। इस संबंध में की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियां इस प्रकार है। संचय एवं अवितरित लाभ की दशा में कुल राशि से रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, एनी अदर सरप्लस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अवितरित हानि की दशा में कुल राशि से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। The last problem relating to admission of a partner is adjustment regarding capital. नए साझेदार के प्रवेश पर आने वाली अंतिम लेखांकन समस्या है पूंजी से संबंधित समायोजन।
When a new partner is admitted, the total amount of capital is determined on the basis of new partner's capital and his profit sharing ratio. On the basis of new profit sharing ratio, old partner's capital is to be ascertained. Therefore, existing capital, after consideration of all adjustments, is to be compared with the capital so ascertained on the basis of new profit sharing ratio. The excess, if any, is to be withdrawn by the partners concerned, and deficit, if any, is to be brought in by the concerned partner. Sometimes the excess or deficit is to be adjusted against the current account of the partners as per their agreement. नए साझेदार की पूंजी। नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की मात्रा या तो साझेदारों के पारस्परिक समझौते द्वारा निश्चित की जाती है अथवा पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के आधार पर निश्चित की जाती है। इस संबंध में फर्म की पुस्तकों में की जाने वाली प्रविष्टियां इस प्रकार होगी। जब नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी की राशि नगद लाता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब नया साझेदार अपने स्वयं के व्यवसाय की संपत्तियां एवं दायित्व एक निर्धारित मूल्य पर फर्म में लेकर आता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट with difference in the values of assets brought in and liabilities brought in. नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझी पूंजी को समायोजित करने का भी समझौता कर सकते हैं। इसके लिए नए लाभ हानि विभाजन अनुपात को आधार माना जाता है। इसकी दो परिस्थितियां इस प्रकार हो सकती है। नंबर 1, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार अपनी पूंजियों का समायोजन करें। सर्वप्रथम नए साझेदार की पूंजी एवं लाभ हानि में उसके हिस्से के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर ली जाती है। पूंजी की कुल राशि को नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटकर प्रत्येक साझी की पूंजी की राशि की गणना कर ली जाती है। उदाहरणार्थ, राम और श्याम 4 और 1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। मोहन को 1/6 भाग के लिए 25,000 रुपये की पूंजी लाने के लिए कहा जाता है। मोहन की पूंजी के आधार पर अन्य साझियों की पूंजी इस प्रकार ज्ञात की जाएगी। 1/6 भाग के लिए पूंजी की राशि है 25,000 रुपये। अतः फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी 25,000 इंटू 6 यानी 1,50,000 रुपये। मोहन का यानी नए साझेदार का नया लाभ विभाजन अनुपात 1/6 है। अतः राम व श्याम का भाग हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। फर्म के कुल हिस्से 1 में से 1/6 घटाने के पश्चात शेष रहा 5/6, जिसे राम और श्याम के उनके पुराने अनुपात में यानी 4/5 और 1/5 में विभाजित करने पर हमें ज्ञात होता है राम का नया भाग 4/6 और श्याम का नया भाग 1/6। इस प्रकार सभी साझियों के नए लाभ विभाजन अनुपात की राशि ज्ञात हो जाती है 4:1:1। इस आधार पर राम की नई पूंजी होगी 1,50,000 इंटू 4/6 यानी 1,00,000 रुपया। श्याम की पूंजी 1,50,000 इंटू 1/6 यानी 25,000 रुपये। और मोहन की पूंजी पूर्व में तय की जा चुकी है, लेकिन वह भी यहाँ पर उसी अनुपात में होगी यानी 1,50,000 इंटू 1/6 दैट इज़ 25,000 रुपये। और यह 25,000 रुपये है वह आधार जिसके आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजियाँ ज्ञात की गई थी। दूसरा तरीका होता है वर्तमान कुल पूंजी के आधार पर समायोजन किया जाए। नए साझेदार के प्रवेश के बाद पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में संचय, अवितरित लाभ अथवा हानि, ख्याति, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ अथवा हानि का समायोजन करने के पश्चात उनके शेष ज्ञात करके उनका योग कर लिया जाता है। यह राशि फर्म के लाभ में से नए साझेदार का हिस्सा कम करने के पश्चात लाभ के शेष भाग के लिए समायोजित पूंजी होती है। समायोजित पूंजी की राशि तथा लाभ के शेष भाग के अनुपात में फर्म की
कुल पूंजी ज्ञात कर ली जाती है तथा नए साझेदार के लाभ के हिस्से के आधार पर उसकी पूंजी का भाग ज्ञात कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए राम व श्याम 5 और 3 के अनुपात में साझेदार हैं। मोहन को 1/5 भाग के लिए फर्म में सम्मिलित किया जाता है, जो फर्म की कुल पूंजी के अनुपात में पूंजी लाएगा। मोहन के प्रवेश के समय राम व श्याम की कुल समायोजित पूंजी 75,000 रुपये है। इस आधार पर हम मोहन की पूंजी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। मोहन का भाग है 1/5, अतः राम और श्याम का भाग होगा 1 - 1/5 यानी 4/5। 4/5 भाग के लिए दोनों की कुल पूंजी है 75,000 रुपये। इस आधार पर फर्म की कुल पूंजी होगी 75,000 इंटू 5/4 यानी 93,750 रुपीज़। जब कुल पूंजी एक बार ज्ञात हो गई तो हम इसके आधार पर मोहन की पूंजी ज्ञात कर सकेंगे। 93,750 इंटू 1/5 यानी 18,750। इस प्रकार इस आधार पर नए साझेदार को 18,750 रुपये की कुल पूंजी का कंट्रीब्यूशन करना होगा। ये सभी समस्याएं सामान्य समस्याएं थी जिनका एक नए साझेदार के प्रवेश पर लेखांकन में लेखा किया जाना आवश्यक है। अब कुछ हम विशिष्ट समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे जो एक नए साझेदार के प्रवेश पर हमें प्रश्नों के जब परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें हल करने के लिए कहा जा सकता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या है लेखा वर्ष के दौरान नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जब नया साझेदार लेखा वर्ष के दौरान फर्म में प्रवेश करता है तब वर्ष के अंत में तैयार किए जाने वाले खातों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। नंबर 1 प्रवेश के पूर्व की अवधि से संबंधित तथा नंबर 2 प्रवेश के बाद की अवधि से संबंधित। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नया साझेदार प्रवेश के बाद की अवधि के लाभों के लिए भागीदार होता है। नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व के लाभ पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में तथा प्रवेश के बाद के लाभ सभी साझेदारों में उनके नए अनुपात में बांट दिए जाते हैं। इसी प्रकार एक और लेखांकन समस्या आ सकती है, वह नए साझेदार के हिस्से की गारंटी, गारंटी ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। कभी कभी फर्म में प्रवेश करने वाला नया साझेदार संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों तथा न्यूनतम लाभांश के संबंध में गारंटी चाहता है। इससे नए साझेदार को अप्रत्याशित हानि से सुरक्षा मिल जाती है। यह गारंटी फर्म की ओर से दी जा सकती है अथवा किसी साझेदार विशेष की ओर से दी जा सकती है। यदि गारंटी फर्म द्वारा अर्थात सभी साझेदारों द्वारा दी गई है तो लाभ कम होने पर गारंटी प्राप्त साझी को न्यूनतम गारंटी की राशि देने के पश्चात शेष बचे हुए लाभ की राशि शेष साझेदारों में उनके आपसी अनुपात में विभाजित कर दी जाती है। यदि गारंटी किसी साझेदार विशेष द्वारा दी गई हो तो लाभ विभाजन करते समय लाभ हानि खाते में गारंटी देने वाले साझेदार का हिस्सा कम करके गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार का हिस्सा उस राशि से बढ़ा दिया जाता है जितनी उसको गारंटी दी गई है। इस प्रकार सभी लेखांकन समस्याओं का जो एक नए साझेदार के प्रवेश के समय उत्पन्न हो सकती है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यानी हमने यह जाना किस प्रकार नए साझेदार के प्रवेश पर नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है, किस प्रकार संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यांकन यानी मूल्यों में परिवर्तन करके अथवा बिना मूल्यों में परिवर्तन किए समायोजन करना, ख्याति का मूल्यांकन और उसका लेखांकन, पुराने और नए साझेदार की पूंजियों का समायोजन, पुराने इकट्ठे किए हुए लाभ अथवा हानियों का पुराने साझेदारों में वितरण, किसी
नए साझेदार का वर्ष के बीच में प्रवेश करने पर आने वाली समस्या, तथा यदि नए साझेदार को भविष्य में होने वाली अप्रत्याशित हानि से सुरक्षा देने के लिए पुराने साझेदारों अथवा किसी एक साझेदार द्वारा दी जाने वाली गारंटी। इन सभी समस्याओं के हल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब विद्यार्थियों, आप किसी भी पुस्तक से उदाहरण एवं प्रश्नों को हल करें एवं कोई प्रकार की समस्या होने पर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से अथवा व्हाट्सएप पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगले व्याख्यान में हम किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर आने वाली समस्याओं के बारे में, लेखांकन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।